Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Hello, good evening, and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business, and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से। The headlines this evening are as follows. Benchmark domestic equity indices end with modest gains. Sensex rises 321 points. Nifty settles above 24,800. Most markets across Asia and Europe surge after US Federal Trade Court blocks President Donald Trump's global trade tariffs. And India to remain the fastest growing major economy during the current fiscal year, projects RBI in its annual report. घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों ने की लिवाली। बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 321 अंक उछला। निफ्टी 24,800 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के वैश्विक कारोबार शुल्क पर यूएस फेडरल कोर्ट द्वारा रोक लगाने संबंधी खबरों के बाद एशिया और यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में आई तेजी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया। घरेलू शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता दिखा। हालांकि अंत में प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। 2 दिन से जारी गिरावट का सिलसिला आज थम गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 321 अंक यानी 0.39% की बढ़त लेकर 81,633 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 81 अंक यानी 0.33% लाभ के साथ 24,834 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन आज भी सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर दिखा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की वृद्धि हुई। As for the detailed stocks in English, the benchmark domestic equity indices today ended with modest gains, snapping its 2-day losing streak, buoyed by a late session rally across most sectors, with realty, metal, and pharma leading the charge. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, gained 321 points or 0.39% to close at 81,633. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 81 points or 0.33% to settle at 24,834. The broader market indices at the BSE also ended in positive territory. The mid-cap index advanced almost 0.5% and the small-cap index increased almost 0.4%. In the Sensex index, 24 out of 30 companies ended up. Among the top gainers, IndusInd Bank surged 2.4%, Sun Pharma added more than 2%, and Adani Ports advanced over 1.9%. In the top laggards, Bajaj Finance slid over 0.7%. Bajaj Financial Services lost over 0.5% and ITC slipped over 0.3%. In sectoral indices at the BSE, barring FMCG, which ended nearly unchanged, all other sectors edged high. Among the top gainers, realty jumped 1.2%, metal climbed almost 0.9%, and focused IT added almost 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,020 companies advanced, shares of 1,957 companies declined, while shares of 134 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 57 companies hit their 52-week high, while 24 companies hit their 52-week low.
So here is where I think I would like to bring in our expert, given that construction has seen such a big push in the recent years and more going in that area, realty jumped only 1.2%. One might, expect a little more surge in that. So what's your take, and also on the markets as a whole today? Thank you, Niharika. I think the markets today have reacted to what happened in the US with regard to tariff. And they feel that it could, I think the idea or the sense in the market is maybe that would soften the current administration's stance on tariffs going forward, looking at the judicial intervention. So I think that has helped market recoup and jump, and that was a sense which was felt even globally if we see. With regard to realty, I think while we've seen most of the infrastructure stocks, they've remained sort of in focus in view of government's capex. But I think we are entering into the monsoon cycle now. We've had an early monsoon. So what we need to keep in mind is realty stocks are still up. We've seen, inventories coming down. But I think with monsoons coming down, construction activity sort of slows down. And maybe that's why, the jump may not have been that much, but the fact is that it has jumped. So I think that is a more significant point here. पहले तो श्रोताओं हम आपको जानकारी देना चाहेंगे रुपए की स्थिति के बारे में। आज अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 15 पैसे कमजोर हुआ है, 85 रुपए 51 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 99.93 पर चल रहा था। और अब दीपशिखा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, बाजार में हमने 2 सत्रों में गिरावट का दौर देखा। हालांकि ये गिरावट बड़ी नहीं थी, यानी मामूली सी कमी हम शेयर बाजार में देख रहे थे। आज भी दिन के कारोबार में उतार चढ़ाव चलता रहा और आखिरकार अंतिम चरण में लिवाली अच्छी खासी दिखी और यानी 0.25% से ऊपर बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। कल भी हमने छोटी और मझोली कंपनियों के प्रदर्शन को बेहतर देखा था, आज भी हम देख रहे हैं। इसे हम, जैसा कि आपने कहा कि हम अमेरिका में या वैश्विक बाजारों में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका असर हमारे बाजार पर है, या हमारे यहाँ जो अपनी आंतरिक मजबूतियां हैं उनके चलते वापस बाजार में रौनक लौटती दिख रही है आपको? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था की जो आंतरिक मजबूती है उसको तो बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारी एजेंसीज जो हैं उन्होंने एंडोर्स किया है और ऐसी उम्मीद है कि ये मजबूती जारी रहेगी। अगर आप देखें, मॉनसून जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अर्थव्यवस्था के लिए, एफएमसीजी और डिमांड के लिए। उम्मीद है कि वो नॉर्मल रहेगा बारिश के हिसाब से, तो परफॉर्मेंस जो है अर्थव्यवस्था का वो तो मजबूती की तरफ रहेगा। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशक जो हैं वो भी वापस आ रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि विश्व के बाजार, खासतौर से अमेरिका में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी है बॉन्ड यील्ड्स वगैरह को लेकर के, तो वो एक कंसर्न है, वो रहेगा बाजार पर हावी। लेकिन ये जो हमारे लोकल फैक्टर्स हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती, ये खास तौर से रहेगा हमारे लोकल फैक्टर्स में। हम बचे नहीं रहेंगे उतार चढ़ाव से, लेकिन ये फैक्टर जो है निवेशकों को आकर्षित करता रहेगा। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि बाजार में कुछ यानी सेक्टर में हम अच्छी खासी आज तेजी देख रहे हैं। इन सेक्टर में भी हम तात्कालिक कारण माने, या जो हमारी अच्छी खबरें आई हैं जैसे मानसून का स्प्रेड थोड़ा पहले हुआ है और अच्छी बारिश इस बार होगी, उसका हम प्रभाव माने ओवरऑल बाजार को मिल रहा, या कोई और खास कारक? देखिए, काफ़ी हद तक जो है जिन क्षेत्रों में तेज़ी आई, जो क्षेत्र फोकस में रहे हैं कुछ समय से, एक तो फाइनेंशियल सेक्टर रहा है, दूसरा जो है एफएमसीजी सेक्टर रहा है। तो इन क्षेत्रों में खास तौर से फोकस रहेगा, क्योंकि अगर डिमांड जो है मजबूत रहेगी, मॉनसून नॉर्मल की आशा की जा रही है जी, तो डिमांड का सपोर्ट इन सारे क्षेत्रों को मिलेगा। उसी वजह से ये जो है मार्केट जो है वही दर्शा रहा है आज।
यदि हम एक और सवाल पूछना चाहें कि अभी का जो बाजार का स्तर है उसमें निवेशकों को, हमारे जो छोटे निवेशक हैं और श्रोता हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, छोटे निवेशकों के लिए खास तौर से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जो मजबूत कंपनीज हैं, उनके ऊपर, और जो क्षेत्र जहां पर ग्रोथ जो है, मोमेंटम ग्रोथ का असर रहेगा। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो हैं जहां पर सरकार केपेक्स पे बहुत खर्चा कर रही है, ये जो स्टॉक्स हैं इन पे मजबूती रहेगी, क्योंकि ये एक सरकार के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पे फोकस किया जा रहा है। जी। इसमें निवेश जब सरकार करती है तो उसका असर जो है बाकी जो कंजम्पशन वाले क्षेत्र होते हैं उन पर भी असर आता है। तो एफएमसीजी हो गया, ऑटो में कुछ हद तक अभी नेगेटिव वो चल रहा था, लेकिन अब जो है उम्मीद की जा रही है कि उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा। जी, आइए हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक घटना चक्र ने दुनिया भर की, कह लीजिए कि शेयर बाजारों को आज तेज गति दी है, उछाल दिया है। तो हम चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां तेजी का रुख दिखा है। जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने कहा, अमेरिका में फेडरल ट्रेड कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक कारोबार टैरिफ को रोकने संबंधी खबर आई है, जिसका निवेशकों के बीच खरीदारी के रुझान के रूप में परिवर्तन देखने को मिला है। हालांकि अमेरिका में संघीय अदालत द्वारा ट्रंप के शुल्क फैसले पर रोक लगाने से, यदि ये रोक वाकई अंततः लग जाएगी, तो राष्ट्रपति के आर्थिक एजेंडा, जो उनका मुख्य, कह लें कि एक उनकी योजना थी, उसको धक्का लग सकता है। आज निवेशकों ने एशियाई बाजारों में अच्छी खासी लिवाली की है, जिससे दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 दोनों सूचकांक 1.9% से अधिक लाभ के साथ बंद हुए। हांगकांग का हिंग सेंग 1.3% से अधिक लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.7% की वृद्धि हुई। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुआ। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो दक्षिण कोरिया में केंद्रीय बैंक ने अपने ब्याज दर में 0.25% की कटौती की है, जिससे ये दर 2.5% पर आ गई है। गौरतलब है कि देश में राष्ट्रपति चुनाव से मात्र 5 दिन पहले ये फैसला किया गया है, ताकि घरेलू मांग घटने के साथ अमेरिका में कारोबारी शुल्क को लेकर बनी अनिश्चितता के मद्देनजर देश में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में सहयोग दिया जा सके। अक्टूबर 2024 के बाद केंद्रीय बैंक द्वारा चौथी बार ये कटौती की गई है, जबकि अगस्त 2021 में पहली बार मौद्रिक नीति में ढील दिए जाने की शुरुआत हुई थी। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार की जाने तक वहां भी लिवाली का सिलसिला ही दिख रहा था। अंतर्देशीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 0.7% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.35% की वृद्धि थी और लंदन का FTSE 100 अपने पूर्व स्तर के आसपास था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा रुझान ऊपर जाने की ओर था। A US federal court today blocked President Donald Trump's global trade tariffs, dealing a major blow to a central part of his economic agenda. The Court of International Trade ruled that Trump overstepped his authority by using emergency powers to impose broad tariffs on imports from nearly every country. The court said only the Congress has the constitutional power to regulate foreign commerce. The Trump administration said it would appeal the decision. So, Dipshika, I think this is a very important piece of news for the day, and it's going to impact global markets throughout, right? While the Trump administration was going all guns blazing, that could have been seen as a protective measure perhaps for the economy. But the court has taken a slightly conservative approach. So, do you think they're trying to protect their stance, or do you think they're trying to protect themselves from, possible backlash that was coming from every economy? Niharika, if you see how this whole confrontation which is being happening between the judiciary and the executive in the US, it's a very interesting sort of play out there. And we've seen this decision, the latest decision on the tariffs as well. So while it provides some temporary, kind of a relief, but definitely, the administration, as like they're saying, they're going to be appealing this decision. So it's not that the tariffs are going off the table, but definitely in terms of the discourse on the tariffs, there are expectations that maybe it may sort of soften the administration's stance
on the tariffs because they've gone all hammer and tongs on it. Absolutely. Getting countries to sort of, come on board to have trade deals and so on and so forth. So that this possibly could be helpful in sort of, some softening there. But I think it's too early to say anything because the way they've gone about pushing this, I don't see they would be backing down. I think the damage has already been done by quite Damage a has bit, right? considerably been done, but there is a pause on the tariffs right now. So maybe there is expectation that pause might be extended further in view of, these rulings which have come out. But I don't think the administration would like to signal that they're sort of backing off right now. दीपशिखा जी, यदि इसे अपने दिल्ली के बारिश के मौसम से देखें तो कहें कि तेज आंधियों का, अनिश्चितता का, वैश्विक अनिश्चितताओं का जो कह लें कि सिलसिला है वो थोड़ा सा अदालत के इस फैसले से बढ़ गया या घट गया, क्या किस अर्थ में लेंगे? क्योंकि बाजार हिचकोले खाएगा उसमें कोई संभावना नहीं, अभी ऊपर की दिशा में जा रहा है। तो बिल्कुल, संघीय अदालत जी, आपने बहुत ही उसको एकदम सही तरीके से, जिस तरह से मौसम ने मिजाज बदला दिल्ली में, एकदम सही कहा। ये बाजार के लिए तो अनिश्चितता ही है, विश्व के लिए ही अनिश्चितता है कि क्या हो रहा है, टैरिफ आ रहा है, टैरिफ नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो बाकी देश भी हैं, उसी हिसाब से अपनी नीतियां जो हैं वो बनाएंगे। भारत जो है, एक ट्रेड डील की बातचीत चल रही है उसकी अमेरिका के साथ, तो हमारे लिए वो ट्रेड डील जो है वो मेन फोकस में है, उसमें क्या आता है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जून तक एक अंतरिम समझौता हो जाएगा और जुलाई में एक पूरा ट्रेड डील हो जाएगा। तो हमारे लिए, हमारे बाजार के लिए वो सबसे अहम रहेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। Well, I'd like to quickly run you by two important stories after this. US stocks edged down on Wednesday as investors digested minutes from the last Federal Reserve meeting, and shares of chip designers fell in late trading. The Dow Jones Industrial Average lost almost 0.6% and S&P 500, as well as Nasdaq Composite, both dipped over 0.5% each. Earlier, the minutes of Fed's Federal Open Market Committee's meeting held on May 6th and 7th showed that its officials acknowledged they could face difficult trade-offs in the coming months in the form of rising inflation alongside rising unemployment. Officials at the meeting noted that volatility in bond markets in the weeks before warranted monitoring as a possible risk to financial stability, and said that a change in the US dollar's safe haven status, along with rising treasury bond yields, could have long-lasting implications for the economy. Now, before I ask you my question, just a quick look at also the RBI report. The RBI in its annual report released today projected India to retain its status as the fastest growing major economy during current financial year. Growth will be driven by rising household consumption, strong bank and corporate balance sheets, and continued public capital expenditure. Inflation is expected to ease, aided by a good monsoon, lower commodity prices, and improved supply chains. While exports may face global headwinds, India's trade deals could offset risks. Manufacturing and construction are set to expand, boosting jobs and demand. The RBI also plans to simplify regulations and enhance financial sector cybersecurity. So, Deepshika, our economy has been... हम अपनी चर्चा को विराम देंगे और प्रधानमंत्री का सम्मेलन चल रहा है, सीधे श्रोताओं आपको वहां लिए चलना चाहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित कृषि संकल्प अभियान देशव्यापी योजना लागू की है, जहां पर कि प्रधानमंत्री का सम्मेलन चल रहा है। हम बेहतर रिजल्ट लाकर के दिखाए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अपने प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाया है, पैदावार भी बढ़ाई है और बड़े सफल प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों की सफल रिसर्च और प्रगतिशील किसानों के सफल प्रयोग, इनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचनी उतनी ही आवश्यक है। इस दिशा में आप सभी
पहले से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब एक नई ऊर्जा के साथ इस काम को करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य को हमने सुना, दीपशिखा जी। किसानों के लिए अनुकूल मौसम चल रहा है और राष्ट्रीय कह लें कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हुई है, जहां प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे सभा को। देश की किसानी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में जो वैज्ञानिक हमारी सोच है, जो हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, और केंद्र सरकार ने लगातार कृषि कार्य को उन्नत बनाने के लिए एक और तकनीकी स्तर पर, दूसरी स्तर पर कह लें कि प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग होता है उसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, और ये पूरा का पूरा जो अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान है, राष्ट्रीय कैंपेन शुरू हुआ है, किस रूप में हमारी खेती किसानी को, और मौसम विभाग के जो ताज़े आंकड़े आए हैं, ताज़े कह लें कि उनकी उपलब्धियां आई हैं कि बहुत सीमित स्तर पर भी वो मौसम की जानकारी दे सकते हैं, कुल मिलाकर किस रूप में लाभदायक होगा यह? मनोज जी, अगर आप देखें हमारे देश में जो कृषि है, हमारे देश में कृषि में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है, रोजगार देता है। जी। लेकिन अगर आप देखें जो हमारे यहाँ खेत हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप उन्हें कंपेयर करें बाकी देशों से जहाँ पर बड़े कमर्शियल लेवल पर फार्मिंग होती है, हमारे यहाँ नहीं होती है। तो इन छोटे किसानों को और जो मध्यम दर्जे के जो स्तर के किसान हैं, इनको टेक्नोलॉजी चाहिए, इनको रिसर्च चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए। तो ये अभियान इसीलिए किया गया है ताकि हमारे यहाँ कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जो टेक्नोलॉजी से ही संभव हो पाएगा। और खास तौर पे जब हम ये ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, वहां से कृषि उपज हो सकता है कुछ स्तर तक हमारे यहाँ आए, तो हमारे किसान भी उसको मुकाबला करने में उसका सक्षम हो पाएंगे अगर टेक्नोलॉजी उनके साथ रहेगी। तो ये है उनके पास तक ये अभियान जो है, उनके पास इस टेक्नोलॉजी को, ये रिसर्च जो हमारे लेबोरेटरीज में है या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के पास है, उनको उन तक पहुंचाया जा रहा है। आइए हम थोड़ा और इस चर्चा को विस्तार देना चाहेंगे। आज उड़ीसा में पूरी जिले में राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत हुई, विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये राष्ट्रीय स्तर पर चलेगा और मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक हमारी उपलब्धियां हुई हैं, और जो आपने कहा कि जोत का आकार हमारे यहाँ काफ़ी छोटा है जिससे उतना लाभ नहीं मिल पाता किसानों को, वहाँ भी मैं समझता हूँ कि भूमि संबंधी सुधार यदि व्यापक रूप से हमारे यहाँ लागू हुए तो उसका लाभ हमें मिल सकता है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक कारोबारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई में सफलता का श्रेय स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को दिया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर अपनी उच्चतम स्तर 1,46,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत अब न केवल लड़ाकू विमान या मिसाइल प्रणालियों का निर्माण कर रहा है, बल्कि नए युग की युद्ध तकनीक के लिए भी तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया देश के लिए एक निर्णायक क्षण है और भारत जापान जैसी उच्च तकनीकी विनिर्माण, इंजीनियरिंग और भविष्य की तकनीकों के लिए विकास केंद्र बन सकता है। इसी सम्मेलन के पूर्ण विशेष सत्र को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में अब महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार, रक्षा और मेडिकल विनिर्माण के साथ कई क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों के दौरान कई गुना वृद्धि हुई है। यहाँ पर समझना चाहेंगे कि किस रूप में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया देख रही है और हमने एक महत्वपूर्ण कह लें कि इस कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करके पूरे दुनिया को संदेश दिया है। लेकिन हम, चूंकि हमारा कार्यक्रम मार्केट मंत्र है, तो उस नजरिए से समझना चाहेंगे कि रक्षा उत्पादन कंपनियां कैसा प्रदर्शन कर रही हैं और किस रूप में संभावना हमारे छोटे आम निवेशक के लिए बन रहा है। देखिए, हमने पूरे इस ऑपरेशन में देखा कि हमारे ड्रोन्स, हमारा रडार सिस्टम, सब मेक इन इंडिया जो है उसका एक बहुत, और आज डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि ये जो है इस ऑपरेशन में
इसने दिखा दिया है कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है, जी। जो मेक इन इंडिया के तहत जो फोस्टर किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया, वो किस तरह से एकदम आगे आया है, उसने साबित कर दिया है। और ये जो है हमारे डिफेंस में खासतौर से ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल किया गया था। ये सब भारत में निर्मित ड्रोन थे, डेवलप्ड ड्रोन थे। तो ये भारतीय कंपनियां जो ड्रोन्स बना रही हैं या जो डिफेंस सेक्टर में उत्पादन कर रही हैं, उनके लिए एक निर्यात के लिए भी एक बाजार जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो निवेश की दृष्टि से डिफेंस का जो क्षेत्र है वो निवेशकों के लिए काफी आकर्षक बन गया है। And from defense to now the traditional crafts of India, India's rich tapestry of traditional crafts and indigenous products is drawing global attention at the Maldives Expo 2025 in Malé. The event, which continues till May 31st, was inaugurated by Maldivian President Dr. Mohamed Muizu and features a vibrant Indian presence under the Government of India's One District, One Product initiative. This year's expo has a special focus on self-help groups. 7 distinctive ODOP products crafted by 5 SHGs from Odisha are being showcased at the Saras Expo, held alongside the main exhibition. And moving on to the next story for this evening, Minister of Consumer Affairs Prahlad Joshi yesterday held a meeting with the e-commerce platforms over the issue related to dark patterns in New Delhi. Briefing the media after the meeting, the minister said that the ministry has identified 13 dark patterns. He said that false urgency claims, misleading advertisements fall under such dark patterns. The minister also directed the stakeholders to abide by the guidelines issued by the ministry related to dark patterns. Mr. Joshi said that clear opt-out and cancellations options should be given to the consumers while shopping on e-commerce platforms. So, Deepshika, very quickly to explain to our listeners, what would you mean by a dark pattern? And secondly, it's aimed at creating this false urgency, which encourages people to buy, much like when somebody says guaranteed returns when they're investing in stock market. So, a word on that to our listeners. Sometimes when consumers are shopping on, say, online platforms, so there would be some products which would be, the algorithm pushes them. Mm-hmm. It pushes them to buy through some claims like this is the lowest price or this is running out, which may not be a correct situation. So I think that is what Consumer Affairs Minister is highlighting, that consumers should not be misled and norms should be followed. Right, and let's take a look at the crude oil prices today. Crude oil prices rose today. Brent crude was trading over 0.1% up at $64.98 per barrel. WTI crude was also trading over 0.1% up at $61.95 per barrel when reports last came in. और अंत में चलें सर्राफा बाजार, जहां सोने और चांदी की चमक तेज रहने की खबर है। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.26% बढ़त के साथ 96,040 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 0.85% बढ़त के साथ 98,370 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। MCX में जून आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 0.29% बढ़त के साथ 95,550 रुपए प्रति 10 ग्राम था। जुलाई आपूर्ति वाली चांदी 0.64% बढ़त के साथ 97,874 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। Thank you so much for joining us today, Deepshika. And before we close the headlines once more, benchmark domestic equity indices end with modest gains. Sensex rises 321 points. Nifty settles above 24,800. Most markets across Asia and Europe surge after US Federal Trade Court blocks President Donald Trump's global trade tariffs. And India to remain the fastest growing major economy during current financial year, projects RBI in its annual report. And with that, it's a wrap on today's Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.